Sets Part 1. Hello friend, my name is C.K. Tyagi and in this video we will learn set. In sets we will learn definition of sets, roster form and set builder form, empty or void set, finite set and infinite set, equal set, subset, proper set and superset, singleton set, power and universal set, open and closed intervals, Venn diagram, operations on sets, union, intersection and difference, and complement of sets. First of all, we will see definition of sets. What is sets? Set is a well-defined collection of objects. As the definition of this, it is a collection that is well-defined. For example, the collection of vowels in English alphabets. Actually, this set contains 5 elements, namely A, E, I, O, U. Okay, so we can say that it is a collection that is well defined because there are vowels that are only 5 elements in English alphabets. Okay, so we can say that it is a well defined collection of objects. Here A, E, I, O, U are objects. Okay, so the collection of first 5 prime natural number is a set containing the element first 5 prime natural numbers. It's a set, means this is definite. First 5 prime natural number are 2, 3, 5, 7, 11. It is fixed. Okay, so we can say that it is a set because we already mentioned above that set is a collection but well defined. Okay, so the collection of Indian cricket team players is a set, but collection of good Indian cricket team players is not a set. Okay, understand it? The collection of Indian cricket team players is a set, but collection of good Indian cricket team player is not a set, since the term good player is vague and it is not well defined. Okay, hence it is only collection, not a set. Because good Indian cricket team player, you can say, some will say that Dhoni and Sehwag are good cricket team player in India, and some will say that Sachin Tendulkar and Dhoni and Sehwag are good Indian cricket team player. So that will not be definite. Okay, that will not be definite, but it will be variable according to person. Means this is not a well defined set, because some will say that Sachin Tendulkar and Dhoni and Sehwag are good, that are best players, but somebody will say that Saina and anything else are good. So that is not a well defined collection. So collection of Indian cricket team player is a set. Yeah, Indian cricket team player, because it will be fixed. Means all the players are in the Indian cricket team. So that is a definite set. Okay, name of all players, but good or bad, that is not a bad. That is not a good set, because that is a collection only. Because it will be variable according to person. Okay, it will be vary person to person. So we will say that set is a well defined collection of objects and Indian cricket team player is a set, but if we will say that good Indian cricket team player, it is not a set, it is only a collection. Okay, now here is sets in mathematical words. ओके, मैथमेटिकल वर्ड में हम सेट्स को कैसे यूज़ करते हैं.
हम कर भी चुके हैं इन लास्ट क्लासेस, लाइक इट a set of all natural numbers. Okay, all of you know very well that natural number is starting from 1 and up to and so on. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 up to and so on. So a set of all natural numbers we will define by n, capital. It is the symbol of set of all natural numbers, so you should remember it. Okay, and capital Z, it is the set of all integers. Set of all integers, you know very well that natural number is starting from 1 and after it one another word will come whole numbers, which is starting from 0. Means all natural numbers can be whole number, but all whole numbers cannot be natural numbers, because whole numbers are starting from 0 and natural numbers starting from 1. So from 0 up to n, up to infinite, it will be the set of whole number, and from 1 up to infinite it will be set of natural number. Okay, but in set of all integers you can say that minus infinite to plus infinite, and minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4, this is the set of all integers. Means it, here is both integers, negative integers, and as well as positive integers. But if you will say that set of all positive integers, then you have to mention here z and plus, z plus symbol you have to mention here. I didn't mention here, but you have to mention. And if we will say that set of all negative integers, then you will mention only z minus symbol. Okay, now come on the q, the set of all rational number. You know very well about rational number. Rational number is that number which we can define in the term of p upon q. We can write in the terms of p upon q, where q is not equal to 0, because here is one condition: q is not equal to 0. If we will divide any number with the 0, then it will be divide and divide and divide and divide, but not terminate, because it has not a definite solution. So here is mentioned that q is not equal to 0, because q 0 नहीं होना चाहिए. इस सेट में जो p upon q है, डिनोमिनेटर पार्ट में 0 नहीं होना चाहिए, then that is a rational number. Okay, but there is second term, that is irrational number. Okay, irrational number कौन से नंबर होते हैं? irrational number वो नंबर होते हैं जिनको हम p upon q की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते. This not be represented in the form of p upon q. Okay, so we will say that here is another word that is called real number, the set of real number. And you know very well that real number is the combination of both rational number and irrational number. So real number, we will represent of real numbers by the word r, capital R. Okay, like as 1.3, 1.7, 1.6, minus 1.2, all are real numbers. Okay, here is another letter which is C. It is for the set of all complex numbers. Okay, now let's see, here is some question which will clarify all the statements which we will read in the last topics. So what is the difference between a collection and a set? First question is, what is the difference between a collection and a set? Give reason to support your answer. That's a good question. I already defined the word collection and the word set. So the best answer is, every set is a collection, but a collection is not necessarily a set. Okay? हर एक सेट कलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक कलेक्शन भी सेट हो. ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन आर सेट्स. ओके, क्योंकि सिर्फ वेल डिफाइंड कलेक्शन ही हमारे सेट्स होते हैं. सारे के सारे जो कलेक्शन है वो सेट नहीं हो सकते, बल्कि हर एक सेट कलेक्शन जरूर होता है. जैसे एग्जाम्पल वही वाला लीजिए हमने, ग्रुप ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इज अ कलेक्शन
अगर हम गुड क्रिकेट प्लेयर्स की बात करें तो वो एक कलेक्शन हो जाएगा, बट एक सेट नहीं होगा। ओके, एंड मैं समझा चुका हूँ आपको कि अगर मैं ये लिखता कि ग्रुप ऑफ क्रिकेट प्लेयर, ओके, या नेम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स या इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर, that will be a collection and a set also, so that will be a well defined collection. Okay, but group of good cricket player, here is the good, and good की जो डेफिनेशन है वो हर एक आदमी की अपनी अलग अलग होगी, क्योंकि कुछ मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि गुड की वजह से डिफरेंट टाइप के हमारी कलेक्शन क्रिएट हो जाएंगे। सो दैट विल नॉट बी अ गुड सेट एंड नॉट वेल डिफाइंड सेट, सो it is only a collection, not a set. Which of the following collections are set? Justify your answer. Here are some questions. So हमें रीड करना है, समझना है, उसको जस्टिफाई भी करना है। The collection of most talented writers of India. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स हमें सोचना है कि कलेक्शन है या फिर सेट है, और अगर कलेक्शन है तो क्यों है और सेट है तो क्यों है। The collection of most talented writers of India. Most talented writers. Here is one word, most talented writers. अगर हम कहते हैं कि collection of writers of India, that's a good. Okay, it will be a set and it will also a collection. But collection of most talented writers of India. Can you define it? Actually, the collection of most talented writers of India is not a set, as there is no specific criteria to determine whether a writer is talented or not. I already clarified this topic that according to different personality views, हमारे हर एक पर्सन के अनुसार अलग अलग कलेक्शन तैयार होंगे। अगर हम पूछते हैं कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर, तो कोई समझेगा कि ये राइटर अच्छा है, ये राइटर अच्छा है, ये राइटर, उसकी लिस्ट अलग तैयार होगी। सेकंड पर्सन बोलेगा कि नहीं ये राइटर अच्छा है, ये राइटर अच्छा है और ये राइटर अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से डिफरेंट लिस्टें हमारी क्रिएट हो जाएंगी। डेट विल बी नॉट द वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो वी कैन से डेट द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट, इज देयर इज नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू डिटरमाइन वेदर अ राइटर इज टैलेंटेड और नॉट। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन था कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ a year beginning with the letter J. Collection of all months of a year. हम जानते हैं कि एक साल में टोटल 12 मंथ होते हैं, बट वो मंथ जिनका बिगिनिंग लेटर J है वो सिर्फ कितने हैं हमारे पास। We know very well that only 3, January, June and July. The collection of all months of a year beginning with the letter J is a set. Because it is well defined set. आप किसी से भी पूछोगे कि वो मंथ का सेट तैयार करो जिसके बिगनिंग में जे आता है, ओनली 3 ही मिलेंगे, जनवरी मिलेगा, जून मिलेगा, जुलाई मिलेगा, इसके अलावा तो कोई सेट तैयार होगा नहीं। तो वी कैन से दैट इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। ओके, सो इट इज़ अ सेट। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। What will you say about it? कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, उन नॉवेल्स का कलेक्शन जिनको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। The collection of novels written by Munshi Premchand is a set because one can determine whether a novel is written by him or not. क्योंकि अगर मैं उनका कलेक्शन करने बैठूँगा जो मुंशी प्रेमचंद ने नॉवेल लिखे थे, हर एक को डिटरमाइन कर सकता है राइटर देख के कि उन्हें मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था या नहीं लिखा था। अगर मैं किसी से भी कहूँगा कि मुंशी प्रेमचंद के सभी नॉवेल्स का मुझे एक सेट तैयार करके दो, से कलेक्शन बना के दो, तो सभी एक ही कलेक्शन बना के देंगे, क्योंकि डेट विल बी फिक्स है। हर एक नॉवेल पर राइटर पड़ा होता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है या नहीं लिखा। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे हुए सभी नॉवेल्स को हम एक कलेक्शन तैयार कर सकते हैं। डेट विल बी वेल डिफाइंड सेट, डेट विल बी डेफिनेट सेट। ओके, जो हर एक के द्वारा तैयार किया वो सिमिलर होगा, सेम सेट बनेगा, सेम कलेक्शन होगा। ओके, सो वी कैन से दैट
collection of novels written by Munshi Premchand is a set because one can determine whether a novel is written by him or not. Okay. Now come on fourth question. The collection of all questions in this chapter. सभी क्वेश्चन का कलेक्शन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर. So they will come. The collection of all questions in this chapter is a set. Set होगा because if a question is given, one can easily decide whether it is a question of this chapter or not. आपने मान लो 10 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं. अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि मुझे एक सेट तैयार कर दो, आप 10 के 10 का सेट बनाओगे और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे ये चैप्टर में मेंशन है या फिर नहीं. तो दैट विल बी अ गुड सेट. ओके, बिकॉज इट विल बी वेल डिफाइंड एंड एवरीबडी विल क्रिएट अ सेम कलेक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, एंड एवरीबडी विल आइडेंटिफाई दैट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस चैप्टर और नॉट. So now come on, a collection of most dangerous animals of the world. Question number 5. Collection of most dangerous animals of the world. Come on this question. Most dangerous. Here is some value also. Because most dangerous animals की list everybody different तरीके से तैयार करेगा. Okay. कुछ लिस्ट तैयार करेंगे, कुछ डेंजरस एनिमल की कुछ लिस्ट बनाएंगे, लेकिन सबकी जो लिस्ट है वो सिमिलर नहीं हो सकती. सबका कलेक्शन एक ही नहीं होगा, सबका कलेक्शन अलग अलग होगा. सो वी विल से दैट अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज अ कलेक्शन, नॉट अ सेट. ओके, बिकॉज देयर इज नो क्राइटेरिया टू डिटरमाइन वेदर एन एनिमल इज मोस्ट डेंजरस और नॉट. कोई क्राइटेरिया नहीं है, सबका अपना अपना क्राइटेरिया बनेगा डेंजरस को लेकर. Okay, fine. Now come on, how to check member or not member. अब आते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी जो एलिमेंट है या फिर ऑब्जेक्ट है वो उस सेट का मेंबर है या फिर नहीं है. सपोज करो मैंने एक सेट लिया हुआ है ए. मैंने डिफाइन कर रखा है कि सेट ए जो है वो सेट है ऑफ ऑल ऑड नंबर्स. ए एक सेट है ऑफ ऑल ऑड नंबर्स. अब ऑड नंबर्स का सेट है ऑब्वियसली स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 3, 5, 7, 9 जितने भी ऑड नंबर्स हैं सब उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे. मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि 1, 2, 4, 9 मेंबर और नॉट मेंबर ऑफ दिस सेट. क्या 1, 2, 4, 9 इस सेट के मेंबर हैं या फिर नहीं है. हमें सेट डिफाइन है ऑड नंबर्स का. हमने ऑड नंबर्स की एक लिस्ट बना ली 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 समथिंग लाइक दैट अप टू सो ऑन. एंड अब चेक करना है वन बाय वन को चेक करते हैं क्या वर्ड सेट में है या इट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट प्लेस. या सो वी कैन से दैट दिस इज द मेंबर ऑफ दिस सेट. आइडेंटिफाई फॉर 2 बट 2 इज नॉट हियर. आई एम नॉट identified it. 2 is here or not. Yeah, I can identify, guys. 2 is not here because after 1 directly 3. So 2 is not here. So we can say that 2 is not the set. 2 is not the member of this set. Yeah. For checking for 4. Yeah, 4. After 3 directly 5, not 4. Okay. So we can say that 4 is not also the member of this set. And after that I will check 9. So 9 is here. I can check it after 7 directly 9. So we can say that 9 is the set of this. Sorry, 9 is the member of this set. Yeah. Okay. But friends, here are some conventions in sets. Number 1 convention is sets are usually denoted by capital letters. जब भी आप किसी सेट को डिनोट करोगे हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे. कैप्स ए हो या कैप्स बी हो या कैप्स सी हो, MN हो, एनीथिंग एल्स. लाइक एज एग्जांपल दे रखा है मैंने. जैसे कैपिटल ए इक्वल्स टू ऑल इवन नंबर का सेट मुझे अगर बनाना था या फिर कुछ नंबर्स मैंने ले रखे थे 2, 4, 6 से, उसका मैंने एक सेट तैयार किया तो उसको मैंने कैपिटल ए से डिनोट किया. ओके, दिस इज द राइट वे. वी कैन नॉट बी मेंशन हियर स्मॉल ए. ओके, जब भी आप कोई सेट तैयार करोगे तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करोगे. फाइन. नाउ सेकंड कन्वेंशन मेरा ये था कि द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर.
कोई भी एलिमेंट सेट के उनको हम हमेशा जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमेशा स्मॉल लेटर से ही करेंगे, स्मॉल ए बी सी एनीथिंग एल्स जो भी आप चाहो. इफ ए इज एन नंबर थर्ड मेरा था, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, सो वी कैन से दैट ए बिलोंग्स टू ए. अगर स्मॉल ए एक एलिमेंट है किसी सेट ए का, तो हम उसे लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए. द ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन इज यूज्ड टू डिनोट द belongs to. Thus we can write a epsilon capital A. Okay, so एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं लेट सेट ए. एक मैंने सेट ए ले रखा है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 4 6 8. अब मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, स्मॉल ए इक्वल टू मैंने माना 2. अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि स्मॉल ए इसका एक कैपिटल मतलब स्मॉल ए इज द मेंबर ऑफ दिस सेट ए और नॉट. देन वी कैन राइट स्मॉल ए एप्सिलॉन ए बिकॉज 2 इज इन द सेट ए. या 2 is in the set A and small a equals to 2. So small a is also belongs to capital A. Means small a belongs to the set A. Yeah. So a epsilon A, where A is element and capital A is set. So we can say that small a is an element, or we can say a member of set A. Okay. Belongs to के लिए आप हमेशा epsilon यूज करोगे. Note down it please. 4th पॉइंट हमारा था कि इफ़ बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए. अगर मैंने एक एलिमेंट जब वहाँ पे पहले ए लिया था, मैं उसको बी ले रहा हूँ, स्मॉल बी लेकर. स्मॉल बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, तो बी कैन राइट बी डजंट बिलोंग्स टू ए. एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया, यहाँ पर हम डजंट बिलोंग की जगह पर हमसे एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे. ओके, लिख लेना उसको. मैंने मेंशन इन केस रिकॉर्डेड लेट स्मॉल ए सेट ए लेट अ सेट ए. मैंने एक सेट ले लिया है, ठीक है भाई, इवन नंबर्स का 2 4 6 8. एंड बी टेक बी इक्वल टू 7 मैंने यहाँ पे माना. देन बी कैन राइट बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए. हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि 2 4 6 8 है, 7 वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली है कि बी इसका एक एलिमेंट नहीं है सेट ए का. सो बी इज एलिमेंट एंड ए इज सेट. सो वी कैन से दैट हियर बी इज नॉट एन एलिमेंट और मेंबर ऑफ सेट ए. और हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बी एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए. ओके. 5 मेरा पॉइंट था कि ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर. मैं यहाँ पर बहुत सारे वर्ड यूज कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहा हूँ, एलिमेंट्स यूज कर रहा हूँ, मेंबर्स बोल रहा हूँ. ये सब सिनोनिमस है. ओके, सब एक ही वर्ड है. सो वी कैन आइडेंटिफाई एनी वन वर्ड. ओके, एग्जाम्पल के लिए ए एप्सिलॉन ए लिखा हुआ है तो हम उसको पढ़ सकते हैं कि ए इज ऑब्जेक्ट ऑफ ए, A is element of A, A is member of A. Whatever you want, you can say. Okay. Now, come on the point. Method of representing a set. एक सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड यहाँ पर सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स हैं. वन इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. Come on the roster form. So in roster form, all the elements of a set are listed. रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि सेट के सभी एलिमेंट लिस्टेड होते हैं, सभी एलिमेंट्स जो हमारे लिस्टेड होते हैं. द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा. सारे सारे एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं एंड आर एनक्लोज विद इन ब्रेसेस. और उन सबको हम ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज कर देते हैं. राइट. सो एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल नंबर इन ए डाइस इज डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म. कैसे डिस्क्राइब करोगे आप एक डाइस के सभी नंबर के एक सेट? तो हम सभी जानते हैं कि डाइस में से कितने नंबर होते हैं? ओनली 6. 1 2 3 4 5 6. या तो मैंने बोला था इन द रोस्टर फॉर्म डेफिनेशन ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड. सभी एलिमेंट पहले देखो कितने एलिमेंट है मेरे पास? ओनली 6. 1 2 3 4 5 6 सबको हमने लिस्ट कर दिया. 1 2 3 4 5 6. सेकेंड था एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा. सबको मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया. थर्ड पॉइंट है मेरे पास कि ब्रेसेज होने चाहिए. मैंने दोनों तरफ से ब्रेसेज लगा दिया. दिस इज द कंप्लीट रोस्टर. इट्स वेरी इजी. उसने बोला था मुझे सेट ऑफ ऑल नंबर इन अ डाइस, तो मुझे डिस्क्राइब करना था रोस्टर फॉर्म में, तो मैंने कर दिया. क्योंकि डाइस में सिर्फ 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, उनके बीच में मैंने कॉमा ही लगा दिया क्योंकि मेरे डेफिनेशन में मुझे गिवन था कि ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर क्लोज विद इन ब्रेसेस. मैंने सारे काम कर दिए. तो ये 3 पॉइंट है मेरे पास कि सभी एलिमेंट लिस्टेड होने चाहिए, एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा, सभी एलिमेंट मेरे कॉमा से सेपरेटेड होने चाहिए, एंड क्लोज विद इन ब्रेसेस. सभी एलिमेंट को मैं ब्रेसेस से इंक्लूड कर दूँगा. राइट. तो सेट ऑफ ऑल बॉबेज क्या आते हैं? अगला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ. सेट ऑफ ऑल बॉबेज. बॉबेज से 5 होते हैं, हम सभी जानते हैं. ए आई ओ यू.
तो उनको भी मैं कोमा से सेपरेट कर दूंगा और ब्रेसेस लगा दूंगा। तो दिस इज द बेस्ट रोस्टर फॉर्म। ओके, बट यहाँ पे सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इन रोस्टर फॉर्म, विच इज इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज इमैटेरियल। रोस्टर फॉर्म में ये है कि जो ऑर्डर है मेरा, जिसमें एलिमेंट मेरा लिस्टेड था, वो इमैटेरियल है, मतलब एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में आप एलिमेंट को लिस्ट कर सकते हो। जैसे हमारे पास ए ई आई ओ यू 5 वर्ड्स होते हैं वोवेल्स के, क्या अब मुझे रोस्टर फॉर्म बनानी है इसके लिए, तो हम क्या करेंगे, ए ई आई ओ यू भी कर सकते हैं, हम ए यू आई ओ ई भी कर सकते हैं, हम ओ ई आई ए यू भी कर सकते हैं, हम यू ई आई ओ ए भी कर सकते हैं। हियर आर 4 पैटर्न, ओके, आई मीन सॉरी, हाँ, हियर आर 4 ऑर्डर्स। किसी भी ऑर्डर में आप रोस्टर फॉर्म तैयार कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर है इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज इमैटेरियल। ओके, सो यहाँ पे आप किसी भी ऑर्डर में रोस्टर फॉर्म को तैयार कर सकते हो। Fine. One thing, this is important point, so you remember it. Important point to be noted in roster form. Second is the dots at the end tell us that the set is continue indefinitely. हम लगा देते हैं ना, जैसे 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। मीन्स इससे हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमें बताता है कि कंटिन्यू इंडेफिनिटली सेट है। ओके, नाउ come on the set of even natural number is represented by, जैसे मैंने एक सेट तैयार किया even natural नंबर का 2 4 6 8 डॉट 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 एंड सो। ओके, तो इस तरीके से क्या शो कर रहा है कि नेचुरल नंबर इंडेफिनिटली सेट है, बहुत आगे तक नेचुरल नंबर जा रहा है, उसको डॉट 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 डिनोट करते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, अर्थात ऑल द एलिमेंट आर टेकन एज डिस्टिंक्ट। इसमें क्या होता है रोस्टर फॉर्म में, कोई भी एलिमेंट हमें रिपीट नहीं करना होता है, ठीक है, सबको सिर्फ डिस्टिंक्ट मतलब एक ही बार लिखना होता है। किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड, मान लो कॉलेज वर्ड आ गया हमारे पास, तो मुझे सेट ऑफ लेटर्स के लिए रोस्टर फॉर्म में तैयार करना है, तो हम क्या करेंगे, अब मैं अगर पूछता हूँ कि कॉलेज में कौन कौन सा लेटर है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर इसके अंदर सी आ रहा है, ओ आ रहा है, एल आ रहा है, ई आ रहा है, जी आ रहा है। बस हमें इसी पॉइंट को ध्यान रखना है। कोई भी लेटर आपने बोला कि सर इसमें एल 2 टाइम्स आ रहा, नहीं, मैंने आपसे ही नहीं बोला, मैंने सिर्फ आपको पूछा कौन कौन से लेटर आ रहे हैं। मैंने ये नहीं पूछा कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने, वो नहीं पूछा। मैंने सिर्फ आपको पूछा कि आप इसमें कौन कौन से लेटर आ रहे हैं, फिर मुझे लेटर बताइए, तो आपने बताया सी आ रहा, सर ओ आ रहा, सर एल आ रहा, सर ई आ रहा, सर जी आ रहा है। सिर्फ इसी चीज़ को ध्यान रखना है कि कौन कौन सा लेटर आ रहा है, कितनी टाइम्स आ रहा है, हमें प्रेजेंट मैटर, हमें इसको ध्यान ही नहीं देना, बस हमारे रोस्टर फॉर्म तैयार हो जाएगी। हमें किसी भी वर्ड को दोबारा रिपीट नहीं करना है, ओनली सिंगल टाइम्स देना है, फिर वो चाहे 5 बार है, 2 बार है, 1 बार है, 3 बार है, डजंट मैटर। ओके, कम ऑन द सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set. सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी का आपको ध्यान देना है। सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी अर्थात इन द सेट ए ई आई ओ यू ऑल द एलिमेंट पोजेस अ कॉमन प्रॉपर्टी। वो क्या है कि सभी वोवेल्स हैं। अगर आप कहो कि इस सेट में मैं एन को डालूँ, वो कॉन्सोनेंट नहीं है यार। सेट बिल्डर फॉर्म बनाते पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखा है कि वो सभी एलिमेंट जो है सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करनी चाहिए। सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या थी हमारे पास कि नेमली हमने इसको किया, नेमली ईच ऑफ देम इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। जितने भी हमारे पास लेटर थे सबके सब वोवेल्स थे, वो भी इंग्लिश अल्फाबेट में, एंड नो अदर लेटर पोजेसेस दिस प्रॉपर्टी। और इसके अलावा कोई भी लेटर इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो क्या हुआ, दैट इज अ वेल डिफाइंड सेट एंड दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करना होता है कि डिनोटिंग दिस सेट बाय यू या बी एनीथिंग एल्स व्हाटएवर यू वांट, किसी से भी डिनोट कर सकते हो। वी राइट यू इक्वल्स टू, हमें यहाँ पर देना एक्स कोलन प्रॉपर्टी, बेसिस लगाएंगे एक्स लिखेंगे कोलन प्रॉपर्टी, एक्स बाई जो भी आपको मेंशन करना है। एग्जाम्पल के लिए यू एक्स कोलन। अब मुझे वोवेल वाले सेट की बात करता हूँ मैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट देना होता है। एक्स के बाद हमेशा उसकी प्रॉपर्टी है। सेट बिल्डर फॉर्म क्रिएट करते पर हमें एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, उसकी प्रॉपर्टी पे। जो स्टेटमेंट होगा वो उसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा। ओके, तो एक्स क्या है, एक्स कोलन, कोलन को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। एक्स सब्जेक्ट, एक्स इज वो इन इंग्लिश अल्फाबेट।
एक्स क्या है, वोवेल है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर एक्स वोवेल है। अब ये स्टेटमेंट में लिख दिया कि एक्स कॉलन एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ इसके अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में वो सिर्फ कौन से होंगे, ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा, सिर्फ 5 एलिमेंट्स। क्योंकि मैंने कंडीशन में दे रहा था उसके प्रॉपर्टी में मैंने मेंशन कर दिया कि एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दिस इज द राइट वे टू रिटन अ सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सो कम ऑन द नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को इसी तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए। द सेट ई ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर कैन बी रिटेन एच। अब देखो यहाँ पे उसने बोला हमसे कि ई ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर कैन बी रिटेन एच। अब मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि इवन नेचुरल नंबर, ओके नेचुरल नंबर है बट इवन, एक कंडीशन इसमें और लगी हुई है प्रॉपर्टी में, तो हमने लिखा ई इक्वल टू, अब इसको लिखने के तरीके बता रहा हूँ मैं आपको किस किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब किस किस तरीके से हम इसको राइट कर सकते हैं। ई इक्वल टू ब्रेसेस स्टार्ट एक्स कॉलन एक्स इज अ नेचुरल नंबर। मैंने बोला कि एक्स एक नेचुरल नंबर है क्योंकि उसने बोला मुझसे कि ऑल इवन नेचुरल नंबर का सेट है, तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इक्वल टू 2 है फॉर स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन तो आप सभी जानते हो कि नेचुरल नंबर का सेट होता है, स्मॉल एन इसको बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 2 3 4 समथिंग आता रहेगा। एक्स इक्वल टू 2 एन देते हैं। अब देखो एन की वैल्यू पुट अप करो स्मॉल एन की, नेचुरल नंबर का सेट है 1 से स्टार्ट होता है, एन की वैल्यू लगाएंगे तो पीछे 2 मिलेगा, 2 लगाएंगे तो 4 मिलेगा, तीसरी वैल्यू लगाएंगे तो 6 मिलेगा, तो 2 4 6 8 इस तरीके से मेरा पूरा सेट तैयार हो जाएगा। तो ये इसको लिखने का एक तरीका है, पहले एक्स लिखेंगे फिर कोलन लगाएंगे फिर उसकी प्रॉपर्टी मेंशन कर देंगे। प्रॉपर्टी इस तरीके से मेंशन करेंगे एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इक्वल टू 2 एन फॉर स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन हमें इसलिए लिख रहा है क्योंकि हमने लिखा एक्स इक्वल टू 2 एन, अब एन की वैल्यू तो आइडेंटिफाई होनी चाहिए ना, तो स्मॉल एन को मैंने कैपिटल एन से बिलोंग करा दिया बिकॉज कैपिटल एन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू अप टू एंड सो ऑन। और यहाँ पे आते हैं हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स कोलन लगा के मैंने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर का सेट है तो एक्स कैपिटल एन को बिलोंग कर रहा है, एक्स इक्वल टू 2 एन, एक्स 2 एन हो गया और स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। देखो सेम आ रहा है, एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एक्स की वैल्यू 2 एन हो रही है और स्मॉल एन कैपिटल एन को बिलोंग कर रहा है। और इसको हम इस तरीके से एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन कॉलन एक्स इक्वल टू 2 एन और स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल, ये 3 तरीके से लिखने के बाद फिर इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं प्लीज नोट दैट एनी अदर सिंबल लाइक द लेटर्स वाई जेड इट कुड बी यूज, कोई भी अदर सिंबल हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बाई कोलन बाई जब होगा, जेड कोलन जेड ही जब होगा, द सिंबल शुड बी फॉलो बाई अ कोलन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिंबल जो है वो हमेशा कोलन को फॉलो करना चाहिए, सिंबल शुड बी फॉलो बाई अ कोलन, जो कि सिंबल है हमारा उसको कोलन आना चाहिए। आफ्टर द साइन ऑफ द कोलन वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सजेस्ट बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट एंड देन इंक्लूड द होल डिस्क्रिप्शन विद इन ब्रेसेस। समझ में आ गया कि सेट ऑफ नंबर डजंट फॉलो एनी पैटर्न, अगर सेट ऑफ नंबर को पैटर्न को फॉलो नहीं करता है इट कैन नॉट बी रिटन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इट मीन रोस्टर फॉर्म, सिंपल सी बात है कि इफ अ सेट ऑफ नंबर डजंट फॉलो एनी पैटर्न, अगर किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है तो इट कैन नॉट बी रिटन इन टू सेट बिल्डर फॉर्म, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इट मीन रोस्टर फॉर्म एनी सेट हो गया बट इन सेट बिल्डर फॉर्म ओनली पैटर्न सेट। रोस्टर फॉर्म में तो कोई भी सेट तैयार करो किसी भी ऑर्डर में, बट अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म बना रहे हो तो ओनली पैटर्न सेट को ही हमें यहाँ पे वैल्यू देनी है क्योंकि पैटर्न सेट पे ही सेट बिल्डर फॉर्म तैयार होगा। रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म के कुछ एग्जांपल हैं। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। लेफ्ट साइड में यहाँ पर रोस्टर फॉर्म दे रखी है, राइट साइड में इसकी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, इन्होंने बोला इनको मैच करा दो। अब देखो फर्स्ट में हम आते हैं प्रिंकल, PRINCL है, क्लियरली प्रिंकल इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो वर्ड था मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ डी में कि एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। अगर मुझे ये कहता है कि एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, एक्स डेट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, अगर मुझे इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है तो मैं क्या करूँगा, पी लिखूँगा, आ लिखूँगा, आई लिखूँगा, एन लिखूँगा, सी लिखूँगा, आई द्वारा नहीं लिखूँगा, पी भी द्वारा नहीं लिखूँगा, केवल लिख चुका हूँ, ए लिखूँगा और फिर उसके बाद एल लिखूँगा, तो PRINCL हो गया। ओके, वही तो मेरे को चाहिए था रोस्टर फॉर्म के लिए। तो हम यहाँ पर खुद ही देख रहे थे प्रिंकल इक्वल टू प्रिंसिपल हो गया, यानी कि थर्ड जो फोर्थ वाली कंडीशन है हमारी एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, ये इसको मैच कर रहे हैं, हैंस मैचेस फर्स्ट मैच विद डी। अब सेकंड वाले पे आते हैं, इसमें लिखा है इन्होंने 0 ब्रेसेस के अंदर, तो 0। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि
जीरो में कौन सा मैच करेगा। अगर हमारा जीरो होता तो हम लिखेंगे कि हाँ हम या एक्स इज एन इंटीजर। अगर वह जीरो होता जीरो का हम क्या लिखेंगे कि एच सच दैट एक्स इज एन इंटीजर इक्वल टू जीरो। ओके, या फिर हम ये लिख सकते हैं एच सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस वन इक्वल टू वन। क्योंकि एक्स का जो भी नंबर है अगर हम उसे वन के साथ ऐड करेंगे तो हमें वन ही मिलेगा। तो जीरो ये कैसे नंबर है जिसको वन के साथ ऐड करोगे तो वन ही मिलेगा। ठीक है, तो ये मैच करके हमारा कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस वन इक्वल टू वन। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म थी जो सी में आंसर है, और जो टू में दे रखा है वो उसका रोस्टर फॉर्म थी। तो टू मैचेज दिस सी। ओके, यानी कि सेकेंड नंबर सी से मैच कर गया। अब आते हैं हम थर्ड वाले पे। हमारे पास क्या दे रखा है 2 3 6 9 18। ये सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिविजन ऑफ 18 है ना। हम दिखाई दे रहा है कि 18 के सभी डिवीजन हैं। 1 से 18 को डिवाइड कर सकते हो, 2 से 3 भी इसका डिवीजन आ रहा है, 6 भी इसी का डिवीजन है, 9 भी और 18 भी 18 के डिवीजन सारे। तो एक्स सेट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिवीजन ऑफ 18। बस बन गया आंसर। थर्ड मैच विद ए। अब आते हैं -3,3 पे, फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले कह रहा है कि एक्स सेट एक्स इज ए लेटर ऑफ, ये तो हमारा हो चुका। होता है -3,3 -3,3 में हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स का -9 इक्वल टू 0। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि एक्स को मैंने 9 को 0 को सोल्व करो तो आपको मिलेगा एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। ओके, यानी कि आपकी दो वैल्यू निकल के आएंगे, एक आएगी 3 और एक आएगी -3। रोस्ट फॉर्म में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे -3,3 आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो भी कंसिडर हैंस फोर्थ मैच इज ए। ओके, नाउ कुछ मैंने लिए, कुछ इसमें सेट बिल्डर फॉर्म मैंने बनाई है, कुछ रोस्टर फॉर्म बनाई है। तो एक्स ए है मेरे पास, ए ऐसा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -4 लेस देन एक्स लेस देन 6। एक्स जो है ग्रेटर देन -4 है और लेस देन 6 है। तो इंटीजर में इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारे पास -4 से बड़ा और 6 से छोटा सेट। दैट इज ए गुड सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स इज ए 3 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यहाँ पर प्रॉपर्टी आ गई, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी आ गई। सो दिस इज ऑल्सो सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजन ऑफ 100। एक्स एक ऐसा प्राइम नंबर है जो विच इज डिवीजन ऑफ 100। 100 के डिवीजन के प्राइम नंबर हमें देने थे हमें। ठीक है, दिस इज गुड। 8 2 4 8 16 32 ये भी आ गया, एफ भी आ गया 2468 G14900। ये सब रोस्टर फॉर्म से हमारे पास। ये नेचुरल नंबर आ गया, नेचुरल इवन नंबर का सेट एफ बी और जी बी है। ए बी सी डी आर इन सेट बिल्डर फॉर्म बट ई एफ जी आर इन रोस्टर फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, thanks for watching this video. Please subscribe our channel so that you can find latest update of our videos. And I want to say one thing to all of you that मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इससे आप IIT एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आपके जितने भी कंपटीशन हैं उन सभी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो सभी अपडेट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।